So welcome back, students. This is lecture 4, Law and Ethics, and we are doing the meetings part of Law and Ethics. This is within section C, Corporate Laws of 35 marks for CM Intermediate, June 2023 attempt. Okay, exams are going to be held from July 15, right? So चलिए, तो meetings continue कर रहे हैं हम. So मेरे ख्याल से this will be your second last lecture. After this will be your last lecture. Okay. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. So now we have to continue with postal ballot. ठीक है, हमने इससे पहले नोटिस अपने मीटिंग के टाइप्स देखे थे. ओके, सो ये था फर्स्ट वन वाज मेथड शो ऑफ हैंड्स, वी हैड कंप्लीटेड लास्ट टाइम. देन वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, देन वोटिंग बाय पोल. ओके, these three were completed. Last one was remaining, which is postal ballot. ठीक है, तो अब हमको ये पोस्टल बैलेट करना है. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पोस्टल बैलेट. चलिए, so first thing is what I told you. Okay, पोस्टल बैलेट नाम से ऐसा लगता है सिर्फ पोस्ट यूज करोगे आप, करेक्ट? यू फील दैट यू आर गोइंग टू यूज ओनली पोस्ट. ठीक है, ऐसा नहीं, सिर्फ पोस्ट से मतलब नहीं है इसका. ओके, so postal ballot is something where you will vote remotely. ठीक है, so जहां पे मीटिंग हो रहा है, जिस बिल्डिंग में मीटिंग हो रहा है, ओके, वहां से आप वोट नहीं करोगे. यू कैन वोट फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड. ठीक है, from any other city also. Okay, so that is the main thing of postal ballots. So the mode by which you can cast your vote through of postal ballot can be through post, can be through courier. Okay, can be by electronic means also. Okay, so postal मतलब सिर्फ जो पोस्ट है, डाक जो बोलते हैं हम, ठीक है, सिर्फ वही है, ऐसा मतलब नहीं है इसका. ओके, राइट. सो नाउ लेट्स सी द how it is defined. Okay, so postal ballot means voting by post or through any electronic mode. Okay, it includes voting by shareholders by postal electronic mode, postal or electronic mode, instead of voting personally for transacting business in a general meeting. So बस बात यह है कि shareholders can vote using postal or electronic mode. ठीक है, कैसे भी हो वोट कर सकते हैं. So only important thing about postal ballot is it is remote voting. Okay, चलिए. So now what business, next point में हम क्या देखेंगे? What are the businesses that can be transacted through postal ballot? Okay, so यहाँ पे ये रूल है 2216, रूल 2216. It tells you that the following items of business can be transacted only by postal ballot. ठीक है, ये बिजनेस है जिसमें आपको वोटिंग कराना पड़ेगा only by postal ballot. So when it is said that voting must be done only by postal ballot and why? ठीक है, reason is, say this is the place where the company head office is situated. ठीक है, so here let us say in this place only, ठीक है, ये एरिया है, area and the vicinity, मतलब the building where the head office is situated and the nearby area. ठीक है, वो सब लेके here let us say only, okay, 5% of shareholders reside. ठीक है, that means 95% are residing outside. सही बात है ना? So only 5% voters are residing in the vicinity and a nearby area में. बाकी लोग दूर दूर रहते हैं, some even in some other cities. ठीक है, बाकी सब यहाँ रहते हैं outside the pink circle. So 95% are here. So now see, when people are residing in far off places, they might not be able to attend every meeting. Correct, logistics का problem होगा, आपको कैब करके कुछ करके आना पड़ेगा, right? There can be some logistic problems, you know, so everyone will not be able to attend, right? So for important decisions, it is encouraged that voting should be done through postal ballot. So people, by sitting in their house itself, they can vote. ठीक है, इससे क्या होता है? पार्टिसिपेशन इज बेटर. ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टल बैलेट. ठीक है,
चलिए ना फॉलोइंग, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, सो क्या क्या आप पोस्टल बैलेट में से कौन से बिजनेसेस है विच यू हैव टू ट्रांजैक्ट ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होगी, राइट, फॉर विच मोर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, सो फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय पोस्टल बैलेट। क्या क्या रहेगा? ठीक है, फर्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। ओके, objects of the company, main purpose of the existence of company is its objects. If object clause is to be altered, okay, then that's a very important thing. You need more participation, correct? So for that you need postal ballot, voting by postal ballot. So objects clause of memorandum ka alteration, okay, for any existing company and for previous companies, ठीक है, that is जो प्रीवियस कंपनी लॉ में जो बने हैं वो कंपनीज विच वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हेन कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्टेड, फॉर दोज कंपनीज, ओके, आपको ओनली फॉर ऑल्टरेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम उसके लिए पोस्टल बैलेट चाहिए। इफ देयर आर सम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देन दे डोंट नीड टू कंपल्सरीली गो फॉर पोस्टल बैलेट। कौन? जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बने हैं वो कंपनीज, ठीक है, विच आर ऑलरेडी देयर when Companies Act 2013 started, ठीक है, but all companies which were incorporated in Companies Act 2013 उनके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ओके, if they are altering any object, ओके, पोस्टल बैलेट से ही करना पड़ेगा, राइट। चलो दिस इज वन, देन ठीक है, तो पहला हमने देखे ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज पोस्टल बैलेट, ठीक है। सेकंड इज ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग एनी कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ओके। So if you have any other company, okay, let's say for example public company, you want to convert it into a private company, postal ballot is required, ठीक है, क्योंकि rights of many people can be affected, that's why you need postal ballot, okay। Next is change in the place of registered office outside the local limits of any city, town or village. So if you want to move registered office outside your city, ठीक है, then postal ballot is required for approval, okay। चलिए, change in objects for which a company has raised money from public through prospectus and has unutilized amount, ठीक है। So you want to change any objects, for that object you have already raised some money from the public, okay। For example you have raised 100 rupees, ठीक है, या 100 crores मान लीजिए, ठीक है, इसमें से you have utilized let's say 80 crores, what is the balance? 20 crores, ठीक है, राइट। नाउ अभी 20 crores आपने यूज, ये अनयूज्ड है, ओके। नाउ यू वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो क्या होगा? दीज पीपल हैव गिवन 100 crores फॉर द करंट ऑब्जेक्ट, राइट, करंट ऑब्जेक्ट के लिए इन्होंने 100 crores दिया है, आप 80 crores से यूज कर रहे हैं, नाउ 20 crores यू आर यूजिंग फॉर सम अदर चेंज्ड ऑब्जेक्ट, ओके, so that will not be permitted, that should not be permitted actually, right। तो ये पॉइंट है, ओके। You are changing objects if you have already raised money from the public through prospectus and you have an unutilized amount, ठीक है, then postal ballot से करना होगा, fine। Issue of shares with differential rights as to voting or dividend or otherwise। तो normally देखिए, normal cases shares carry equal rights, ठीक है, voting rights, voting powers, और one share will be जितना रहेगा whatever is the voting power, same will be the voting power for other shares normally, ठीक है। But sometimes shares with differential voting rights are issued by the companies, इसको DVR बोलते हैं, differential voting rights, okay। इसमें प्रॉब्लम ये है कि different types of categories, different categories of shares can have different voting rights, correct। So for this approval is needed from all the shareholders, correct, है ना, क्योंकि कल को फिर क्या होगा, one person holding 100 shares, okay, one person is holding 100 shares, ठीक है, another one is also holding 100 shares, in differential voting हो सकता है कि इसके पास 80 वोट्स हैं, ओके, और इसके पास 50 वोट्स हैं, दिस कैन बी पॉसिबल विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। इसीलिए
नाउ इसको डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो whenever you are trying to issue shares with differential voting rights, you will have to call everyone in that meeting, करेक्ट। इसीलिए सबको वोट करने में ईज होना चाहिए, एवरीवन शुड बी एबल टू वोट, इसीलिए पोस्टल बैलेट। ओके, सो शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड, ठीक, कैसे भी है जिसमें आप डिफरेंशिएट करें, दो टाइप ऑफ शेयर्स डू नॉट हैव द सेम राइट, ओके, देन दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है, राइट। वेरिएशन इन द राइट्स अटैच्ड टू क्लास ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, प्रीवियस पॉइंट के जैसा है, ठीक है। ये है राइट्स से मतलब है, प्रीवियस पॉइंट में they are talking specifically about voting rights and dividend rights, but there are some other rights also, ठीक है। So variation in the rights attached to any class of shares debentures, आप अगर right को vary कर रहे हैं again, so you have to make sure that everyone who is affected participates, ठीक है। Then buyback of shares you would have already heard, right? Buyback of shares आपको FA में भी है ये, ठीक है। So before buying back of shares, you will have to for that resolution आपको postal ballot कराना पड़ेगा, so that everyone gives their opinion, ठीक है। Election of a director, postal ballot, okay। Sale of whole or substantially the whole of undertaking of the company, यानी आप बिजनेस ही बेचना चाहते हो, either whole or a major part, of course you need the permission of the shareholders or a majority of the shareholders, right? So you will have to give chance of postal ballot, ठीक है। लास्ट ये है giving loans or extending guarantee or providing security in excess of the limit specified, ठीक है। Last point is giving loans or extending guarantee in excess of the limit specified, ठीक है। There are some limits which are specified in the Companies Act also in section 186, ठीक है। So if for some reason it is being extended, ठीक है, अगर मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में आप लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, which is extending with the limits which are already provided in the act or your articles, ठीक है। लिमिट को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो, उससे पहले you will have to ask all the shareholders, ठीक है। डायरेक्टर्स कैन नॉट डू इट ऑन देयर ओन मोशन, इसके लिए भी पोस्टल बैलेट लगता है, ओके। चलिए, देन लास्ट इज, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, OPC is 1% company, right? We had talked about this in our previous lectures. So OPC and other companies having up to 200 members. Okay. So they're not saying just private companies, other companies up to 200 members. So any kind of company which is having up to 200 members only are not required to transact any business through postal ballot. ठीक है। क्योंकि कम members है तो एक साथ आ ही सकते हैं, right? But where you have got 10,000, you have got many members, ठीक है। Now asking all of them to come together is little tough. They have to come from far off places. आपके members ही हैं 50, 100, 150, it's small company. You can always arrange for everyone to come together. So there is no compulsion of postal ballot इस case, ठीक है। तो ये points मैंने आपको बताया यहाँ पे। What are the business which you have to transact through postal ballot compulsorily, ठीक है। ये है compulsorily. Fine. These business have to be transacted through postal ballot only. ये सब चीजें हमने देखा है, बहुत सिंपल है, राइट। सो you just have to remember this, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, ओके। दिस इज सेक्शन 110 में आ गए हैं अभी हम, ओके ओके। अ कंपनी, इट सेज अ कंपनी, पहला पॉइंट में बोलता है शैल, ठीक है। पहले पॉइंट में बोला है शैल, सेकेंड पॉइंट में बोला है मे, ठीक है। Second point is starting with may. First point is starting with shall. First point is compulsory. Okay. A company shall for such items of business as CG may notified to be transacted only by postal ballot. ठीक है। ऐसा कोई resolutions which central government has notified you have to do by postal ballot only. ठीक है। उसके लिए postal ballot ही कराना पड़ेगा. And second thing is may, यानी यहाँ पे option. First में it is compulsory.
If CG has notified that you have to do it by postal ballot, then you have to do it by postal ballot. Okay, there is nothing which you can do otherwise. Okay, and second thing is may for any resolution other than ordinary business and any business for which directors and auditors have a right to be heard at the meeting. इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट के लिए मे है, ये क्या है? फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस मीन्स एनी रेजोल्यूशन अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस. ओके, तो क्या होता है ऑर्डिनरी बिजनेस? हमने पढ़े थे पहले, करेक्ट? देयर आर 4 businesses which are said to be ordinary business only for a annual general meeting. ठीक है, AGM में there are 4 items which are considered as ordinary businesses. वो क्या होते हैं? ये वाले सेक्शन में हमने देखा था. ओके, ठीक है, तो ये ठीक है, ऑल बिजनेस ये बोल रहे हैं. ठीक है, इन केस ऑफ एन AGM ऑल बिजनेसेस shall be deemed as special except ये सब बोला है ना, ये सब जो है ऑर्डिनरी बिजनेस है. ये 4 ये हमने देखा था. ओके, दिस इज व्हाट कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस. सेकंड इज डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड. ओके, appointment of directors in place of retiring directors, appointment and fixing of remuneration of auditors. ठीक है, these 4 are said to be ordinary business but only for annual general meeting. For other meetings even these will be special business. ठीक है, सिर्फ AGM में ये 4 जो है ordinary business बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, ordinary मतलब मामूली नहीं. ओके, यहाँ पे जो ordinary यूज हो रहा है, ordinary business जो है, ठीक है, और स्पेशल बिजनेस. ऑर्डिनरी मतलब मामूली नहीं है, ऑर्डिनरी मीन्स रेगुलर. क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इफ यू सी दिस कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ योर 1 year's हार्ड वर्क. ठीक है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑल शेयर होल्डर्स विल बी इंटरेस्टेड इन दिस ओनली. ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब क्योंकि हर साल आपको ये करना है, एवरी ईयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी. ओके, इससे अच्छा होता है इसका नाम अगर रख देते हैं रेगुलर बिजनेस. ओके, ऑर्डिनरी से अच्छा. ऑर्डिनरी से ऐसा लगता है कि मामूली है, इसलिए जस्ट क्लैरिफाइड दैट ये मामूली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज रेगुलर. ओके, ठीक है, यहाँ पे फिर बोला गया था कि फॉर एनी अदर मीटिंग ऑल बिजनेसेस विल बी स्पेशल. ठीक है, तो ये वाली चीजें भी, इफ इट इज कंसिडर्ड इन एन EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, so दिस विल आल्सो बी स्पेशल. ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे. सो क्या मे वाला चल रहा था. सो कंपनी शैल फॉर those resolutions which CG central government has notified that it has to be transacted by postal ballot. So you have no option, it must be transacted by postal ballot. Second में may है, आप करो, बहुत अच्छा है. ठीक है, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते. ओके, बट may for any item other than ordinary businesses and any business for which directors and auditors have a right to be heard, where directors and auditors will give their say in that meeting. ठीक है, अपनी बात रखेंगे मीटिंग में. ऐसा मीटिंग ऑन एंड वेयर ऑर्डिनरी बिजनेस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड. ठीक है, ये 2 तो पोस्टल बैलेट से ही कराना है. ओके, दीज आर एक्सेप्शंस. ओके, सो ठीक है, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस आप करने वाले हो, ओके, और इन दैट मीटिंग डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, फॉर दीज 2 मे नहीं है, ये मे इसके लिए नहीं है. ठीक है, इसलिए अदर देन बोल दिया. ठीक है, they have said may but they have accepted it, है ना, एक्सेप्शन कर दिया इसको. ओके, तो इसीलिए ordinary business and if directors and auditors have a right to be heard, then that has to be through postal ballot. Other than that बाकी सारी चीजों में may अप्लाई हो जाएगा. ओके, यानी आप चाहो तो करो पोस्टल बैलेट, आपको इच्छा नहीं है तो मत करो. ओके, डोंट वांट डोंट डू, राइट. ठीक है, ट्रांजैक्ट बाय पोस्टल बैलेट इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग सच बिजनेस एट अ GM. ठीक है, जनरल मीटिंग में बुलाने से बेहतर है यू कैन ट्रांजैक्ट एट अ पोस्टल बैलेट. ठीक है, क्या क्या कंपलसरी है आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इसमें. ठीक, तो ये है सेक्शन 110 जो ये बताता है आपको. ओके,
चलो, नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, राइट। सो प्रोसीजर ऑफ मीटिंग क्या है? अर्लियर वी हैड सीन प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग इन जनरल। ठीक है, तो ये है, यू आर गोइंग टू कंडक्ट मीटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। इन दी एंड आप कंडक्ट क्या कर रहे हो? मीटिंग ये कंडक्ट कर रहे हो। विल बी लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज इन दिस। ठीक है, नॉर्मली जैसे कंडक्ट होता है मीटिंग, ओके, इवन व्हेन यू आर कॉलिंग देम इन द ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस में बुला के आप जब मीटिंग कर रहे हो, दैट एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग meeting through postal ballot, it will have lots of similarities. It will not be fully similar, but both are procedure for conducting a meeting. Some similarities will be there. Okay, so चलिए, so इसका procedure ये है. First, what will happen? Company will send notice to all shareholders plus draft resolution. ठीक है, you have to give a notice that meeting is being conducted. Send notice to shareholders plus draft resolution explaining the reasons. ठीक है, एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड असेंट और डिसेंट। असेंट यानी हामी, डिसेंट यानी ना बोलना। ठीक है, असेंट मीन्स यू आर सेइंग यस आई एग्री विद द रेजोल्यूशन, डिसेंट मीन्स यू आर सेइंग नो आई डोंट एग्री विद द रेजोल्यूशन। ठीक है, रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर असेंट और डिसेंट इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट। ठीक है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। Okay. The procedure में first is company will send a notice plus draft resolution which is going to be voted upon. ठीक है, जिसके लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगा, दैट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नोटिस के साथ आप भेजोगे उनको। ओके, एंड टेल देम द रीजंस, ऑल व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज दैट रेजोल्यूशन फॉर, impact, everything you will write. Okay, and then ask their assent or dissent, basically their vote, their voting, yes or no. ठीक है, yes or no आप पूछोगे। ठीक है, within 30 days you have to give them 30 days. ये 30 days from the date when they receive नहीं है। क्यों? because there will be so many people. One person will receive tomorrow, one person will receive after a week, right? So you cannot say यहाँ पे कि 30 days after you receive. So it is 30 days from the date of dispatch of notice. नोटिस जब आप भेजते हो ना, उस डेट से 30 days। ओके, फर्स्ट थिंग है, बहुत सिंपल। ओके, नोटिस भेज दीजिए शेयर होल्डर्स को, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज दीजिए और उनको यस और नो वोट करने के लिए बोलिए। ठीक है, एंड दे विल वोट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, दैट्स ऑल। ओके, अब हाउ विल यू सेंड द नोटिस? ठीक है, यू कैन सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, और इफ यू हैव अ कंप्यूटर प्रोग्राम बेस्ड ऑन दैट, कैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भेज सकते हैं, और थ्रू कोरियर सर्विस। ठीक है, नोटिस को ये मीन्स में आप भेज सकते हो। ओके, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एक एड पब्लिश करना होता है। ठीक है, वेन एवर यू पब्लिश एनी एड इन अ न्यूज़पेपर, क्या होता है? वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज, वन इज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यही होता है हर जगह, राइट? So ad has to be published at least once in vernacular language of the district in which RO is situated, या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, बट इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में आप देते हैं, बट नेशनल न्यूज़पेपर में दिया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट वंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, informing about the dispatch of ballot papers. So you are going to tell everyone through this advertisement that we have sent out the notice and draft resolution. ये बताना है इसमें। ठीक है, एड एडवर्टीजमेंट में। ओके, और ये एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आप स्पेसिफाई करोगे? यू हैव टू स्पेसिफाई सम अदर थिंग्स। क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। ओके, वन इज स्टेटमेंट दैट द बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। क्लियरली बोलना है दैट बिजनेस यानी रेजोल्यूशन विल बी वोटेड अपॉन बाय पोस्टल बैलेट व्हिच इंक्लूड्स वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, पोस्टल बैलेट जो बोला जाता है, सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं बोला जाता। व्हेन यू से पोस्टल बैलेट, इट एक्चुअली इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो। जब आप बोलते हो, इसको ऐसे बोला जाता है हमेशा, पोस्टल बैलेट विच इंक्लूड्स वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जस्ट फॉर क्लैरिटी। ठीक है, ये आपको बोलना है, ये स्पेसिफाई करना है इन दैट एड, या ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सब एड में। ओके, ये सब जो है आपको एडवर्टीजमेंट में ये करना है। ओके,
एक मिनट, ठीक है, ओके। तो ये है, तो ये वाला जो ऐड देंगे ना, ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं पेपर में, ओके, इसमें क्या क्या चीजें रहनी चाहिए वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग बोले कि बिजनेस इज गोइंग टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। देन डेट ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिसेस, ठीक है, कब डिस्पैच ऑफ नोटिसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। एंड व्हेन विल वोटिंग बी कमेंस्ड, ठीक है। डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग, वोटिंग का पीरियड क्या क्या है, दैट यू विल टेल, ओके। Then statement that any postal ballot received from the member after the said date will not be valid, ठीक है। And voting by post electronic means shall not be allowed beyond the said date। ये पूरा पॉइंट है कि जो आपको टाइम दिया गया है, ओके, मैक्सिमम इज 30 days, ठीक है। तो टाइम जो दिया गया है उसके बाद अगर आपका वोट आता है तो दैट इज इनवैलिड, वो आप बोलोगे, बस उतना ही, ठीक है। Then statement to the effect that members who have not received postal ballot forms. See, sometimes it happens you have sent to everyone, but some people might not receive for some reasons. Correct. So those who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate. ठीक है, तो डुप्लीकेट देंगे, इसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन आपको देना पड़ेगा, ओके। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस कनेक्टेड विद द वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। एक इसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन दे दीजिए, अगर किसी को नहीं मिला है कुछ नहीं, तो दे कैन गिव सम नंबर्स वेयर दे कैन कॉन्टैक्ट एंड गेट इट रेक्टिफाइड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। ये सब क्या देखे अभी हमने कि आप एड में क्या क्या चीजें डालोगे, दीज आर द थिंग्स यू विल ऐड, पुट इन द एडवर्टीजमेंट, ओके। देन अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। नोटिस जो है प्लेस इट ऑन द वेबसाइट आफ्टर यू सेंड इट टू द मेंबर्स, ठीक है। सेंड इट, पोस्ट इट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डिस्पैच कीजिए, हाउएवर आफ्टर यू सेंड इट टू द मेंबर्स देन यू पोस्ट इट इन द वेबसाइट, ठीक है। नोटिस वेबसाइट में भी आपको डालना है, राइट। इट विल रिमेन ऑन द वेबसाइट टिल द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट्स। When people will start voting, the last date for that, till that date that ad has to remain, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या बोले, आपकी जो नोटिस है उसको प्लेस इट इन द वेबसाइट ऑल्सो। किसी को नहीं मिला बट एवरीबडी विल बी नोइंग द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, तो वहां से तो एक्सेस कर ही लेंगे कोई भी, करेक्ट। तो प्लेस द नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्ड विल अपॉइंट वन स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर इज द पर्सन who will receive all votes counted, ठीक है, and then prepare a report and send it to the chairman, okay। तो appoint one scrutinizer or postal ballot received back from the shareholders shall be kept in the safe custody of the scrutinizer, ठीक है। shareholders once they vote, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे जैसे भी हो, once they vote, उनका जो वोट्स है that will be in the safe custody of the scrutinizer, ठीक है। स्क्रूटिनाइजर के पास आएगा सब, right। Then no postal ballot shall be defaced or destroyed or declare the identity of the shareholders, ठीक है। तो postal ballot एकदम clearly it should show कि who is the person, यानी to whom he is voting। उसमें सिर्फ नंबर्स रहते हैं, ओके, नाम नहीं रहेगा उसमें, ओके, सीक्रेट रहता है बैलेट, ठीक है। तो ये है। तो देन स्क्रूटिनाइजर आफ्टर एवरीवन हैज सबमिटेड देयर वोट्स, स्क्रूटिनाइजर हैज 7 days, ठीक है, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट्स, 7 days टू जस्ट काउंट एंड प्रिपेयर एंड, ठीक है, सेंड द रिपोर्ट टू द चेयरमैन, ठीक है। सो 7 days मैक्सिमम टाइम, विद इन 7 days ही हैज टू सबमिट, ठीक है। चाहे तो नेक्स्ट डे ही कर सकता है, एवरीथिंग इज रेडी, ओके, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, देन इट वेरी क्विकली यू गेट टू नो द रिजल्ट, ठीक है। तो आप जल्दी भी दे सकते हो, ओके। So scrutinizer shall maintain register either manually or electronically. The way he wants, he can maintain his record. Okay. चलिए, पोस्टल बैलेट एंड अदर पेपर्स जो ये पहले ही बोल दिया गया था, इट विल बी अंडर सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर, ठीक है। ऑल
votes, everything, postal ballot, everything will be under the custody of the scrutinizer till when? Till the chairman considers, approves and signs the minutes. ठीक है, once chairman signs, ठीक है, then scrutinizer का काम खत्म हो जाता है. Okay, then what he will do? He will return, scrutinizer shall return the ballot papers and other papers, registers, whatever he had with him, everything he has to return to the company. ठीक है, company has to preserve such records safely, right? और जो vote जो है, the assent or dissent means the vote received after 30 days will not be considered. ठीक है, 30 days is the maximum time, right? उसमें पहले ही बताया गया था 30 days. 30 days के बाद जो दिया है, now when people can start voting immediately from the next day. ठीक है, जिसका anyone who is decided, they will start voting immediately, correct? But last vote, latest time है आपको within 30 days of notice date. ठीक है, उसके बाद तो आपका कंसिडर नहीं होगा वोट. ठीक है, you cannot vote after that. Last is the result shall be declared by placing it plus scrutinizer's report on the company's website. पहले नोटिस डाले थे कंपनीज वेबसाइट में, जब रिजल्ट तैयार है नोटिस को हटा दीजिए और प्लेस द रिजल्ट प्लस स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट, ठीक है, ऑन द कंपनीज वेबसाइट. ठीक है, इस तरीके से किया जाता है पोस्टल बैलेट, राइट? है बहुत सिंपल, कुछ इसमें कुछ टफ नहीं है. ओके, तो आपको जैसे मैंने बताया उसी उसी क्रम में आपको याद रखना है. इट इज वेरी सिंपल. ऐसे कैसे सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है आपको. यू डोंट नीड टू रिपीट एवरीथिंग एज इट इज. ठीक है, शुड मेक सेंस. चलो, सो नेक्स्ट जो है विल टॉक अबाउट सम रेजोल्यूशंस. ठीक है, तो रेजोल्यूशंस क्या है? कुछ भी नहीं, एनी एनी पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग. ठीक है, फॉर विच यू नीड द बाइन ऑफ द मीटिंग. मतलब बाइन का मतलब है आप ऐसा कुछ चीज डाल रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं. यू आर सेइंग दैट वी वांट टू डू दिस एंड यू वांट द परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. दैट इज अ रेजोल्यूशन. इसको रेजोल्यूशन बोला जाता है. ठीक है, तो नाउ every decision of the company, either board meeting, general meeting, ठीक है, it is taken through resolutions. Okay. तो resolutions दो टाइप के होते हैं, ordinary and special resolution. Ordinary resolution is normally called as OR. ठीक है, special resolution को SR बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है? ordinary resolution है स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, votes for must be greater than votes against. ठीक है, ordinary resolution में अगर, ठीक है, 61 members have attended, ठीक है, the meeting. ओके, और यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर अगेंस्ट. ठीक है, फॉर अगर है 31, अगेंस्ट इज 30. ओके, तो दिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. दिस जस्ट हैज टू बी मोर देन अगेंस्ट, दैट्स ऑल. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं. ओके, एक भी वोट अगेंस्ट से एक वोट ज्यादा हो गया फॉर का, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड. ठीक है, तो चलिए देखें. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ओके, अच्छा, इसमें इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दीज टू सेक्शंस. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है 114(1), स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी 114(2). ठीक है, तो ये दो बहुत हमेशा काम आएंगे, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. सो यू कैन रिमेंबर दीज टू सेक्शंस. ठीक है, 114(1) एंड 114(2). मैं बहुत सारे सेक्शंस याद रखने के लिए नहीं बोलता हूँ आपको, ओनली सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ओके, सो नाउ what is ordinary resolution? A resolution shall be OR if the notice required has been duly given. Notice what is, it should be a valid meeting basically. ठीक है, notice required has been duly given and it is required to be passed by the votes cast. ठीक है, ब्रैकेट को भी रीड नहीं करेंगे. ठीक है, don't read what is in bracket. To be passed by votes cast in favor of the resolution. ठीक है, by members. ब्रैकेट को अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए फॉर नाउ. ठीक है, सो चलिए मैं ऐसे बताता हूं आपको.
तो लेट्स सी दिस लाइक दिस फर्स्ट, ठीक है। जो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको देखेंगे बाद में, तो सब एडिशनल चीजें हैं, ओके। जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। इसको हटाइए और इसको हटाइए, ओके। चलो, नाउ रीड, ठीक है। व्हाट डज इट से? रेजोल्यूशन, a resolution shall be OR if the notice required has been duly given, ठीक है। And it is required to be passed by votes cast in favor of the resolution, okay, by members. Vote cast in favor of the resolution by members, okay. It should exceed the vote cast against the resolution. ये सिंपल चीज है। वोट कास्ट इन फेवर मस्ट एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बस है बाय मेंबर्स हु वोट इन पर्सन, प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट, यानी कैसे भी कोई भी टाइप का वोटिंग हो, इट शुड एक्सीड, फेवर में जो है दैट शुड एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है। और ये ब्रैकेट में जो लिखा था वो देखते हैं, देख लेते हैं, ओके। सो बाय वोट कास्ट ये बोल रहे हैं बस वेदर ऑन अ शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली और अ पोल, ठीक है, किसी भी तरह का पोलिंग किया हुआ आपने, ओके। इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में ब्रैकेट में बोल रहे हैं इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट इफ एनी ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। मेनी टाइम्स कास्टिंग वोट ऐसा होता है, चेयरमैन हैज अ वोट, चेयरमैन कैन नॉट वोट नॉर्मली, ठीक है। अगर जैसे सपोज यहाँ पे, ठीक है, अगर ये दोनों 30-30 हो जाते, देन चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट, ठीक है, ठीक है। अगर चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट, आर्टिकल्स ने उसको अलाउ किया है टू हैव अ कास्टिंग वोट, तब चेयरमैन के पास एक वोट होता है। इफ बोथ आर इक्वल, चेयरमैन दोनों में से एक में अपना वोट डाल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। तो मतलब जब रिजल्ट आ रहा है, डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है, देन चेयरमैन कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिकली दिस इज 30, देन चेयरमैन कैन नॉट वोट। 31-30 हो गया, ही कैन नॉट वोट, ठीक है। चलो, ये है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी शॉर्ट में क्या है, ठीक है। 31:30 हो गया, 31 इज फॉर, 30 इज अगेंस्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, ओके। एस आर स्पेशल रेजोल्यूशन, ये है सेक्शन 114(2), ठीक है। रेजोल्यूशन शैल बी एन एस आर व्हेन, फर्स्ट पॉइंट वही है, इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज एस आर हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस, यानी नोटिस में आपको बताना है कि हम एस आर पास करने वाले हैं, यू हैव टू टेल देम, ओके, ठीक है। because intention to propose resolution as SR has to be specified in the notice। क्यों बताना पड़ता है कि हम SR पास करेंगे, ठीक है। रीजन इज, क्या होता है कभी कभी, ठीक है। सो से फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, मान लीजिए टोटल 100 मेंबर्स, ओके, टोटल 100 मेंबर्स, ठीक है। एंड जो है इसमें से मान लीजिए 90 मेंबर्स हैव अ मेजोरिटी, ठीक है। 90 मेंबर्स का व्यूज सेम है या सिमिलर है, ठीक है। 10 का, या ऐसा मान लीजिए 20 मेंबर्स का व्यू अगेंस्ट है, ओके। 80 मेंबर्स का व्यू फॉर है, ठीक है। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, तो ना एवरीबडी विल नॉट ट्राई टू अटेंड द मीटिंग। उनको मालूम है कि चलो ये 80 में से, ठीक है, 80 में से इवन अगर 21 लोग भी आ गए, इनमें से 21 लोग भी आ गए और इनमें से सारे भी आ गए, स्टिल दे विल विन द रेजोल्यूशन, करेक्ट, ठीक है। दे आर गोइंग टू विन इट, तो इसीलिए कई लोग नहीं भी आएंगे। बट इफ इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आपको वोट्स कास्ट इन फेवर, जैसे अगर आपके 12 वोट्स है टोटल, ठीक है, ये बता रहा हूँ एस आर, ओके, विच आई मार्किंग इन रेड, ये है स्पेशल रेजोल्यूशन। सो आपके जो फेवर के जो वोट है, ठीक है, और दिस इज से अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है, दिस फेवर एंड अगेंस्ट, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, एस आर की, टॉकिंग अबाउट स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है।
तो 12 वोट्स है, अगर वोट कास्ट इन अगेंस्ट 3 है, ओके, सो फेवर शुड बी 3 टाइम्स मोर देन दैट, एटलीस्ट, यानी 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक है। सो इन फेवर इट इज 9, अगेंस्ट इट इज 3, ओनली देन योर स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पास्ड, ठीक है, राइट। तो यानी स्पेशल रेजोल्यूशन क्या बोलता है, वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर देन द वोट कास्ट अगेंस्ट। समझ में आ गया, ये 3 है तो ये 9 होना चाहिए। तो इस केस में हमने नीचे जो एग्जांपल लिए थे, if 20 मेंबर्स का एक ग्रुप है अलग, ठीक है, ओके, सो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो ये 20 पूरे आगे मान लीजिए, दे हैव कम 20, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए इनके 60 वोट्स पड़ने चाहिए। तो बाय चांस इन लोगों ने ये मान लिया कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, मान ली अगर, तो मोर पीपल माइट नॉट कम एंड दे माइट लूज द स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। इसीलिए बताना जरूरी है इन द नोटिस इटसेल्फ दैट इट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। चलो, resolution shall be SR when the intention to propose the resolution as SR has to be specified in the notice calling the GM, ठीक है, और other intimation given to its members of the resolution, ठीक है। नॉर्मली नोटिस के साथ ही सारे इंटीमेशन दे देते हैं, नोटिस में थोड़ा फिर बाद में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया जाता, विद द नोटिस ओनली एंटायर इन्फॉर्मेशन इज सेंट, ठीक है। सो इन द नोटिस इटसेल्फ आपको ये बताना है कि ये SR होने वाला है, ओके, ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट फॉर SR इज, ठीक है, नोटिस हैज टू बी ड्यूली गिवन, दैट वाज देयर इन OR आल्सो, ठीक है। थर्ड थिंग इज वोट्स कास्ट इन फेवर, ओके, आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वोट कैसे भी हो सकता है, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली, पोल, राइट, but vote cast in favor must be 3 times more than vote cast again। ये सेंटेंस आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, कभी कभी डाउट हो जाता है, ठीक है। क्या डाउट होता है इसमें कि यार व्हाट आई शोड यू, ये अगेंस्ट इज 3, फेवर में है 9, तो ये 9 होना चाहिए कि 9 से एक ज्यादा होना चाहिए, ये वाला डाउट हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को, ओके। शुड, तो ये 3 टाइम्स इज 9, तो शुड इट बी मोर देन 3 टाइम्स, क्या ये 10 होना चाहिए या फिर 9 है इज सफिशिएंट, वो डाउट हो जाता है, ठीक है। सो फिर में ये सेंटेंस याद रखना, वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है। एटलीस्ट बोल दिया है ना, 9 इज इनफ, इसका 3 गुना कीजिए अगेंस्ट का, मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर स्पेशल रेजोल्यूशन, ओके। इट नीड नॉट बी मोर देन 9, ठीक है, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन मिनिमम फिगर में बोल रहा हूँ, इट शुड बी 3 टाइम्स पोस्ट वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। जैसे ये 2 रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, ये 2 ही टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। तीसरा जो है, दिस इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कौन देगा, shareholders have to give for some resolution, shareholders have to give notice to the company that we want a meeting, ठीक है, जिसमें ये चीज डिस्कस हो और इस पे वोटिंग हो, ओके। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कंपनी को नोटिस दे रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पे बात कराओ, कर ये रेजोल्यूशन पे नोटिस कराओ, ठीक है, ये रेजोल्यूशन पे आप वोटिंग कराओ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, whereby any provision contained in the act or article, special notice is required of any resolution, ठीक है। So notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by some members, ठीक है, ओके। अब ऐसा तो नहीं होगा कोई एक मेंबर ने बोल दिया कि नहीं मैं ये रेजोल्यूशन चलाना चाहता हूँ, कंपनी कैन नॉट डू दैट, ठीक है, यू हैव टू सी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आल्सो, करेक्ट। सो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मस्ट से दैट, ये कितना है, व्हाट इज द सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो जो नोटिस दे रहे हैं फॉर स्पेशल नोटिस, दे शुड एटलीस्ट होल्ड 1% और मोर वोटिंग पावर, और दे शुड होल्ड शेयर्स of which aggregate paid up capital is
अप टू 5 lakhs, ठीक है। ये अभी मैक्सिमम फिगर है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जो 5 lakhs का जो फिगर है, ओके, ऑन विच एग्रीगेट सम नॉट एक्सीडिंग ₹5 lakhs, ठीक है। तो 5 lakhs से ऊपर नहीं किया जा सकता इसको, ओके। 5 lakhs पेड अप कैपिटल, जितने लोग साथ मिलके बोल रहे हैं वी वांट रेजोल्यूशन एंड पीपल आर गिविंग स्पेशल नोटिस, ठीक है, दे मस्ट बी होल्डिंग शेयर कैपिटल ऑफ either एटलीस्ट 5 lakhs, और अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो वट एवर इट इज लेस देन 5 lakhs, उतना अमाउंट चल जाएगा, ओके। इफ इट इज प्रिस्क्राइब दैट से 2 lakhs होना चाहिए, एग्रीगेट सम ऑफ पेड अप कैपिटल इज 2 lakhs, अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा अगर बोला है तो ऑल पीपल जिनका टोटल 2 lakhs के ऊपर है दे कैन टुगेदर गिव दैट स्पेशल नोटिस, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अभी कितना है, सम नॉट एक्सीडिंग 5 lakh, ठीक है। तो अभी 5 लाख जो है इसका लिमिट है, ठीक है। तो दो चीजें, ये दोनों दीज आर नॉट क्यूमुलेटिव, याद रखना, ठीक है। दोनों में से एक भी आपका हो गया और दिया है तो और any one is fulfilled, that is sufficient. So if you have got 1% or more voting power, then good enough. You don't need to see this at all. If you do not have 1% or more voting power, but you have among yourself, you have got paid up capital, ठीक है, up to 5 lakhs, या फिर जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है उतना है आपका टोटल आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन गिव दैट स्पेशल नोटिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने क्या किए, सम शेयर होल्डर्स हैव गिवन नोटिस टू द कंपनी, नाउ कंपनी हैज टू गिव नोटिस टू अदर्स आल्सो दैट दिस नोटिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड अपॉन, राइट। सो वो है लास्ट पॉइंट, ठीक है। द कंपनी शैल गिव इट्स मेंबर्स नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, बस, ठीक है। ये है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, इसमें कुछ खास नहीं है। यानी आप अगर कुछ चीज का डिस्कशन कराना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज में आप वोट कराना चाहते हैं, ठीक है, इन द जनरल मीटिंग, देन यू हैव टू गिव नोटिस टू द कंपनी बिफोर, ठीक है। तो मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग का एजेंडा इज ऑलरेडी फिक्स्ड, टाइम इज फिक्स्ड, उसके बीच में अगर सब दूसरे दूसरे रेजोल्यूशन लाने लगे तो मीटिंग का बिजनेस पूरा नहीं होगा। सो यू हैव टू गिव नोटिस बिफोर, ठीक है। बस वो चीजें हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज रेजोल्यूशंस पास्ड एट एन एडजर्न्ड मीटिंग। तो नेक्स्ट जो है दैट इज रेजोल्यूशंस पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग, ठीक है। सो रेजोल्यूशंस पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग, एडजर्न्ड मीटिंग क्या है, सबसे पहले कोई मीटिंग है जो आज होना था, ओके, टुडे मीटिंग होना था, बट द मीटिंग हैज रिजॉल्व कि आज नहीं होना चाहिए, चलिए नेक्स्ट वीक करते हैं, ओके, लेट्स मूव इट टू नेक्स्ट वीक, दिस इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, एडजर्नमेंट, ठीक है, यानी मीटिंग इज मूव टू सम अदर डे। तो ये पॉइंट एक्चुअली बोल ये रहा है कि मेन तो एजेंडा वाज फॉर दिस मीटिंग, ठीक है। सपोज मान लीजिए इसको मैं डालता हूँ, लेट्स से 10th जून, मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड फॉर 10th जून, ठीक है। नेक्स्ट वीक इसको मूव कर दिया 17th जून, ठीक है। तो जो डेट रहेगा सारे रेजोल्यूशंस का, रेजोल्यूशंस पास जो हम बोलेंगे, उसमें डेट आप 10th जून डालोगे या 17th जून डालोगे, दैट इज द क्वेश्चन यार। तो ओरिजिनल मीटिंग डेट इज 10th जून, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्कशन चालू हुआ था, बट देन वी सेड दैट चलो अगले हफ्ते वोट करेंगे, मे बी बिकॉज मोर पीपल विल बी प्रेजेंट, ठीक है। सो व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि जिस दिन में मोशन पास हो रहा है, दैट इज जिस दिन में जो रेजोल्यूशन है दैट इज गेटिंग पास्ड, ठीक है, उसी डेट को आप कंसिडर करोगे। ऑफिशियली इट विल बी 17th नॉट 10th, ठीक है। तो जो आपका एडजर्न्ड मीटिंग का जो डेट है दैट डेट इज रेलेवेंट, ओके। चलो, रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द एडजर्न्ड मीटिंग, ठीक है, ऑफ अ कंपनी और क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग्स और बोर्ड मीटिंग, ठीक है।
इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड, ठीक है, एट एडजर्न्ड मीटिंग ऑफ कंपनी, क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, resolution shall be treated as it is, as if it is passed on the date when it is actually passed, that is date of adjourned meeting and not earlier date, ठीक है। ये तो वैसे लॉजिकल भी है। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, what we are going to see is resolutions and agreements to be filed, ठीक है, यानी रजिस्ट्रार के पास क्या क्या फाइल करना है, ओके, दैट इज सेक्शन 107। It says copy of every resolution or any agreement mentioned below, ठीक है, copy of every resolution or agreement mentioned below, नीचे एक लिस्ट है, ओके, together with the explanatory statement, ठीक है, explanatory statement of notice, right, annexed to the notice, ठीक है, in which the resolution is proposed shall be filed with the registrar within 30 days of passing or making thereof, ठीक है। किस में फाइल करेंगे, उसके लिए एक फॉर्म नंबर है MGT 14 with prescribed fees. Any form you are filing with the registrar, there is some prescribed fees because registrar is giving you time to file it and load it, correct? तो उसके लिए कुछ फीस आपको भरना पड़ता है, ठीक है। So here what are we saying? Copy of every resolution or agreement, ठीक है। इवन एग्रीमेंट्स में भी, ये एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए भी आप रेजोल्यूशन तो रहता ही है, ठीक है। रेजोल्यूशन विल टेल यू, शेयर होल्डर्स विल एग्री और डिसएग्री, ओके। अगर आपको एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है, इफ देयर इज अ बिजनेस एग्रीमेंट यू वांट टू डिस्कस दैट, उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन रहेगा, ओके। सो कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन एंड एनी एग्रीमेंट, ठीक है, रेजोल्यूशन, एग्रीमेंट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ओके, ये सब फाइल करना पड़ता है आपको विद द रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, ठीक है। इफ इट इज एन एग्रीमेंट for which no resolution is required, and then 30 days of making the agreement, उतने के अंदर आपको you have to file with the registrar in form MGT 14 plus fees, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग आर्टिकल्स, ठीक है, यानी एनी रेजोल्यूशन विच इज ऑल्टरिंग योर आर्टिकल्स एंड कॉपी ऑफ एवरी एग्रीमेंट, ठीक है, ये दोनों shall be annexed to every copy of the articles issued after passing of the resolution or making the agreement, यानी जब भी you have passed a resolution जिससे articles get amended or any new agreement which you have entered to, that should be attached to the current articles, ठीक है। तो वो आपको इसके बाद हर जो नया नया एग्रीमेंट करते जा रहे हो आप, ठीक है, और whatever new amendments are being made, you have to keep on attaching it to the current articles, बस वो बात है, ओके। अच्छा, नाउ यहाँ पे ऊपर आई हैड टोल्ड यू, ठीक है, चलिए, ओके। सो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड बिलो, करेक्ट, कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट मेंशन्ड बिलो यहाँ पे बोला था ना, तो वो लिस्ट हम देख रहे हैं अभी। व्हाट आर द एग्रीमेंट्स व्हिच आर टू बी फाइल्ड लाइक दिस, ठीक है, कौन से रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। सो दैट इज द थिंग हियर, प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू एसआर, कोई भी एसआर हो, इट हैज टू बी फाइल्ड लाइक दैट, जैसे हमने ऊपर देखे, राइट, ठीक है। रेजोल्यूशन एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, और if it is not agreed to by all members would not be effective, okay, unless passed as special resolution, तो इसको बोलते हैं entrenchment provisions, ठीक है, ऐसी चीजों को बोलते हैं provisions of entrenchment, ठीक है। entrenchment का मतलब है ये ऐसे कुछ बेसिक चीज होते हैं which are very very fundamentally important, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है, इसमें आप कंडीशन बहुत ही टफ लगा देते हो, जैसे एसआर है, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ज्यादा टफ कई बार हो जाता है एंट्रेंच्ड प्रोविजंस। इसका बेस्ट एग्जांपल फॉर एंट्रेंच्ड प्रोविजंस जो आपने, वो जो आप देखते हो डेली लाइफ में, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वी हैव लोकसभा,
एंड राज्यसभा, ठीक है, राइट। तो इफ एनी बिल इज पास्ड इन मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, वो बिल पास हो जाता है, इट बिकम्स अ लॉ, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यू नीड टू हैव 75% वोट्स इन फेवर, ठीक है। तो अभी तक के मेरे ख्याल से ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं हुई है जो अकेले 75% वोट्स मस्टर कर पाए। इवन करंट गवर्नमेंट इज अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, बट दे डोंट हैव दैट मच मेजोरिटी जिससे 75% वोट मस्टर करके दे कैन डू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग प्रोटेक्शन टू मेनी पीपल, ठीक है। वो प्रोटेक्शन को आप अगर हटाना चाहते हो, और इफ यू वांट टू टेम्पर विद दोस प्रोविजंस, इट इज नॉट इजी नाउ, जस्ट बाय नॉर्मल लॉ यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, यानी जो मेन फाउंडिंग बॉडी है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडिंग बॉडी जो था, ठीक है, दे हैव प्रोवाइडेड सच प्रोविजंस कि ये चीजें हैं जो कोई भी गवर्नमेंट आसानी से चेंज नहीं कर पाए, लाइक दैट इज कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, ठीक है। ये वैसा प्रोविजन है, ओके। सो सम रेजोल्यूशन ऐसे रहेंगे, सब बोलेंगे तभी होगा करके, और अ वेरी हाई मेजोरिटी, लेट्स से 90%, ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसको which are called as entrenchment provisions, ठीक है। तो ऐसे कुछ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस जो पास हुए हैं, ओके, वो भी आपको यू विल हैव टू फाइल विद द रजिस्ट्रार एज पर द अबव प्रोसीजर्स, ठीक है, राइट। नॉर्मली एसआर से ऊपर कुछ नहीं होता स्पेशल रेजोल्यूशन, बट देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स ऑफ एंट्रेंचमेंट मेंशन जिसमें एसआर से भी काम नहीं होगा आपका, एसआर से भी ज्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, ओके। एसआर इटसेल्फ इज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ठीक है। एसआर क्या बोलता है, जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से जो पास हो रहा है, दैट इज नॉट इनफ, एसआर से, राइट। योर वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी 3 times मोर देन अगेंस्ट, वो भी एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ठीक है। चलो, देन व्हाट एल्स इज टू बी फाइल्ड, एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय कंपनी, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एमडी, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर के रिलेटेड कुछ अगर आपने अपॉइंट किए, रीअपॉइंट किए, दैट रेजोल्यूशन को भी आपको यू हैव टू फाइल इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये है रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स व्हिच आर एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ये भी एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है। दिस इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। For example, preference shareholders have some right. So tomorrow, equity shareholders should not come together and tamper with the rights of preference shareholders. ठीक है। So कुछ decisions है which only a class meeting can take. Okay. और उसमें भी class meetings में भी you can have a certain level of majority कुछ entrenchment provisions के लिए. Okay. The resolutions or agreements which have been agreed to by any class of members, but which if not so agreed to, you would not be effective unless you have a special majority. यानी मत बोलने का मतलब यही है कि एनी रेजोल्यूशन, ठीक है, विच इज एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, बट ये किसके लिए है, फॉर अ क्लास मीटिंग लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग, इसको भी आपको यू हैव टू फाइल एज पर द अबव प्रोसीजर, ठीक है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप पास्ड एज पर सेक्शन 59 ऑफ आईबीसी, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोलते हैं आईबीसी, ठीक है। सो ऑल योर पहले जो ये होता था हमारा एनी प्रोविजंस फॉर इंसॉल्वेंसी वगैरह, अभी इस कोड से चलता है, नया रूल है, ठीक है, ये रूल से चलता है। सो खैर इससे आपको मेन लेना देना नहीं है, यू विल लर्न दिस इन फाइनल, आईबीसी का एक डिटेल्ड सेक्शन है आपको, ठीक है। यहाँ बस याद रखना, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ कंपनी टू वाउंड अप वॉलेंटरी, ठीक है, उसके लिए दैट आल्सो हैज टू बी फाइल्ड एज पर द अबव प्रोसीजर, ठीक है। चलिए, so next is resolutions passed in pursuance of section 179(3), ठीक है, provided that no person entitled under shall be entitled under section 399 to inspect and obtain copies, ठीक है।
रेजोल्यूशन इन परसुएंस ऑफ 179(3) ये है बोर्ड रेजोल्यूशन से, ठीक है, सम रेजोल्यूशन व्हिच आर पास्ड बाय द बोर्ड, आप शॉर्ट में बोल सकते हो बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है, ये रेजोल्यूशंस, बोर्ड रेजोल्यूशंस जो है इसको इंस्पेक्ट करने का राइट जो है सबको नहीं रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट और ऑब्टेन कॉपीज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस, ठीक है। ऐसे बोर्ड रेजोल्यूशंस आल्सो शुड बी फाइल्ड बाय द अबव प्रोसीजर। यहाँ पे बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज फाइल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। फॉर्म नंबर MGT 14 प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस में जो फाइल कर रहे हो, व्हाट आर द रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स व्हिच कैन बी फाइल्ड लाइक दिस, वो ये लिस्ट है, ठीक है, दैट्स ऑल। चलो, यहाँ सब आपको ये सब जरूरत नहीं, सेक्शन 59 ऑफ IBC ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। IBC भी याद रखो तो मोर देन इनफ, ओके। हियर ऑल्सो जस्ट रिमेंबर बोर्ड रेजोल्यूशंस, ठीक है। इसको भी फाइल करना, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ओके। एनी अदर रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। और कोई रेजोल्यूशन है, एग्रीमेंट है, ठीक है, जो आप लोग, आपको पब्लिक डोमेन में यानी आपको वेबसाइट वगैरह में डिस्प्ले करना पड़ रहा है पब्लिक, ओके, दोस थिंग्स शुड आल्सो बी फाइल्ड, ठीक है। ये पॉइंट ये हो गया। सो नेक्स्ट इज विल कंटिन्यू फ्रॉम मिनट्स द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेट मी से कंटिन्यू, ठीक है, मिनट्स से हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल क्लोज दिस लेक्चर नाउ, ओके। सो गो थ्रू दिस, नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर, ठीक है, that also will be posted today itself, right? So thank you, so we will meet very soon. चलिए।